Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes. Today it is the first lecture on friction and some applications also I'll be discussing in this first lecture, and rest of the literature that you can download from my app. That is the name of that app is Tantra Physics classes again, and you can download that from the Google store. There's a literature available which you can download and solve those questions. And in the course of lectures, I will solve those questions for you here. Friction. So, first of all, let us see what we have to learn in friction. Number one, what we have to learn in friction is, first of all, we must know what is friction. What is friction? What is friction? This is the first thing that we have to explain. Second, how to find the magnitude of frictional force. Magnitude of frictional force. Number third, how to find the direction. How to find direction. How to find direction of frictions. Friction. Number four, applications. ये सब चलता रहेगा. Maybe it will take a few lectures. What is friction? पहली बात यह है कि it's a force. Friction is a force. And what kind of force? It's a force when two bodies are in contact. When two bodies are in contact, and they have a relative motion against each other, like this. The two bodies in contact, maybe a body is on the surface, or two bodies are just in contact like this. If they have a relative motion, relative motion is, if my hands are like this, and I push my hands like this, my two hands together, they don't have a relative motion. Relative motion is when there's a difference of velocities between this body and this body, between two hands, like this. Relative motion. And there's a friction. Or if the two bodies are at rest against each other, but they have a tendency of relative motion. They are about to move against each other. Even then there's a friction. So friction is when two bodies are in, first of all, when two bodies should be in contact, and if there's a relative motion between the two bodies, or if there is a tendency of relative motion between the two bodies, there is a frictional force. First of all, it is very important to know. And frictional force is, in most of the time, this frictional force does negative work and it drains out energy. It drains out energy. Most of the times it does negative work. It does positive work. It does zero work. Frictional force does zero work, it does positive work, it does negative work also. But in situations where it does negative work, it drains out energy from the system. But frictional force is very important. When we walk on the ground, it is because of the frictional force supports us moving on the ground. If there is no frictional force between your feet and the ground, you can't walk. The tires roll. Transportation, the tires, rolling of tires on the ground is because of frictional force. The frictional force is very important. If you drill a hole, drilling of holes is possible not by frictional force. Somebody, किसी के दांत में दर्द है और उसको अपना दांत निकालना पड़ता है डॉक्टर के पास जा करके. The pulling of the teeth, it is by frictional force. You can't hold somebody with a grip. It's only because of frictional force. आपने देखा होगा वो जब दो persons के दरमियान wrestling होती है. Wrestling में क्या करते हैं वो पहले अपने ऊपर तेल मलते हैं, so that there is no grip on them, so that they reduce the frictional force. There's no grip. One cannot catch hold the other with strength. तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बहुत ही
important भी है, और in some cases it drains out energy. So it is something that we can't live without. जैसे वो स्पेस स्टोन्स बाहर से आते हैं, स्पेस से आते हैं, स्पेस ह्यूज stones that come from the outer space. When they enter our atmosphere, due to friction with the air, they catch fire and become ashes within no time. Otherwise, they will come and hit the ground. So उस सूरत से भी हम बच जाते हैं कि कहीं वो स्टोन यहाँ जमीन पर आकर के यहाँ मतलब नुकसान न पहुंचाए. तो वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स का हेल्प ये है कि when they enter our atmosphere, they are so fast moving through the atmosphere, they catch fire because of the friction with the atmosphere, and they become ashes before they reach onto the ground. So friction force is very important. Now, how to find the magnitude of frictional force? Basically ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होते हैं, जैसे यूं ऐसे कुछ, ये सरफेस है और इसके ऊपर ये बॉडी है, तो जो ये दो सरफेसेस होते हैं, इनके जो एटम्स, दे कम सो क्लोज, दे आर ऑलमोस्ट इन कांटेक्ट. There is only a bond distance between the atoms of this body and atoms of the surface. Bond distance. So वो bond distance जो है, they create electrical force on each other. If you push it, the bonds tend to break, and there is an electrical force between the two surfaces. So frictional force is basically electrical in nature. One theory is that there is roughness, undulations between the two surfaces that cause the friction. But the modern theory is that the frictional force is basically electrical in nature. That I will write. The frictional force is electrical in nature. Electrical in nature. Number second, well, how to find the magnitude of frictional force? I must tell you, when the two bodies are in contact, this body with the surface of the earth, या अगर ये body है और दूसरी body contact में हो, earth न सही कोई surface न सही कोई और body हो, if they have a relative motion, or if they have a tendency of relative motion, then what is the frictional force? How to find the magnitude of frictional force? So this is a body here. In order to find the magnitude of frictional force, I must know what is the state of the body. What is the body? मतलब, is it in motion? Is it at rest? Or is it about to move? So first of all, तो मुझे body को देखना पड़ेगा. ये जो body है, is it at rest with respect to the surface on which it lies? Is it at rest with respect to the body on which it is in contact with? जिस बॉडी के साथ इसको कंटैक्ट है, कहीं ये बॉडी उस बॉडी के विद रेस्पेक्ट में रेस्ट में तो नहीं है. तो पहला ये काम करना है, हमें बॉडी को देखना है अच्छी तरह से. व्हाट इट इज डूइंग, व्हाट इज इट स्टेट, इज इट मूविंग, इज इट एट रेस्ट, और इज इट अबाउट टू मूव. तो क्या कितने स्टेट हो सकते हैं? या तो रेस्ट में हो सकता है, या तो इतना फोर्स इस पर हो ताकि इट इज अबाउट टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, या फोर्स इतना ज्यादा हो इस पर, या ये ऑलरेडी मूव करता हो. सो तीन ही चीजें तो है, either the body is at rest, or it is about to move, or it is in motion. बस that is all. So first of all you have to see to that. पहले वो देखना पड़ेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स निकालने से पहले आपको वो देखना पड़ेगा. वो आपको पूरा देखना पड़ेगा कि इसका स्टेट पूरा देखना पड़ेगा. So first of all, when the body is at rest, when body is at rest, पहली बात तो ये, बॉडी रेस्ट में with respect to the surface, with respect to the other body, okay, surface या other body. पहली बात तो ये, when the body is at rest with respect to, जब बॉडी रेस्ट में हो तब इस पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है वो हम यहां आपको बताएंगे और आपको याद रखना है. जब बॉडी रेस्ट में है
तो समझो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट इज जस्ट इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स इस पर अप्लाई आप करोगे, सपोज मैंने इस पर फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई किया, बट बॉडी डज नॉट मूव। 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से बॉडी मूव ही नहीं हुआ, इसका मतलब इसका अपोजिट साइड डायरेक्शन से इतना ही फोर्स मिला इसको 1 न्यूटन। I apply 2 Newton, but the body does not move. That means 2 Newton has come in the opposite direction. 3 Newton, 3 Newton, 4 and 4, 5 and 5, 6 and 6. तो इसका मतलब जब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगा तब तक अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। That's all. So when the body is at rest and you are applying a force but body does not move, that means the backward frictional force is equal to the applied force. तो हम अब स्टेटमेंट लिखेंगे, frictional force is equal to applied force. It is quite categorical. बॉडी रेस्ट में है, आपने कितना भी फोर्स अप्लाई क्यों नहीं किया हो, लेकिन बैकवर्ड जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसके बराबर होता है। आपने फोर्स यूं अप्लाई किया, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आता है, इट इज अपोजिट टू दिस अप्लाइड फोर्स। ठीक, अब वो डायरेक्शन निकालने के लिए और एक रूल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट आता है, अपोजिट टू दिस अप्लाइड फोर्स। So this is one point. Frictional force is equal to applied force so long as the body is at rest. अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर मैं आपसे समझाऊंगा। मैंने so here frictional force is self adjusting force to the applied force. ये applied force के जब तक बॉडी रेस्ट में है, frictional force applied force को एडजस्ट करता रहता है। It is self adjusting force to the applied force so long as the body is at rest. मैं लिखूंगा the frictional force is self adjusting force so long as the body is at rest. जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स को एडजस्ट करता रहे किसी हद तक। देखिए यहां मैं फिर समझाता हूं। अच्छा चलिए, नंबर थर्ड पॉइंट, अब क्या है थर्ड पॉइंट क्या है, अब देखो अभी तो रेस्ट में है बॉडी। थर्ड पॉइंट ये लिखा जा सकता है व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव, लेकिन अबाउट टू मूव कब होगा, अबाउट टू मूव कब होगा। थर्ड पॉइंट, व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव, when the body is about to move on the surface, या किसी दूसरे बॉडी के विद रेस्पेक्ट, किसी दूसरे बॉडी के विद रेस्पेक्ट टू मूव करने के अबाउट है। when the body is about to move on the surface, to move on the surface। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने 1 न्यूटन लगा अप्लाई फोर्स किया, बॉडी डज नॉट मूव, मतलब बैकवर्ड फोर्स भी 1 न्यूटन, 2 Newton, 3 4 5 5 6 maybe 6 7 maybe 7 opposite, 10 maybe 10। मैं अब 11 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, बॉडी बिगिंस टू मूव। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये 10 से ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, मतलब 10 तक तो मैच करता रहा, लेकिन 11 जब मैंने लिया तो इसने मैच नहीं किया, बॉडी बिगिंस टू एक्सेलरेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसका मतलब यह है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स को एडजस्ट करता रहता है, लेकिन एक टाइम पर इसका जो वैल्यू आ जाता है वो लिमिटिंग वैल्यू आ जाता है, मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है, उसके बियॉन्ड में ये इंक्रीज नहीं होता है, तो उसको कहा जाता है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा अगर आपने अप्लाइड फोर्स दे दिया तो बॉडी तो एक्सेलरेट होगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उससे ज्यादा तो होगा नहीं। सपोज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 10 है, आपने यहां से 11 न्यूटन दिया, अब फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्ट तो करेगा नहीं, इसलिए ये एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा फॉरवर्ड में। तो उस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स का क्या है इक्वेशन, क्या वैल्यू है। सो व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसका वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन फिर भी वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है, क्योंकि 10 सपोज 10 इज द सपोज 10 और वहां से भी 10,
या कोई कुछ भी 11 और वहां से भी 11 आया, तो फिलहाल ये अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है, क्योंकि बॉडी बॉडी अभी भी रेस्ट में है, बॉडी अभी भी रेस्ट में है। तो रेस्ट का कंडीशन वही है, फ्रिक्शनल फोर्स को अप्लाइड फोर्स। लेकिन इसका और एक इक्वेशन होता है म्यू एस एन, where mu s is coefficient of static friction, and n is normal reaction. N is normal reaction offered to body, offered to the body by the other body, maybe from the ground, यहां तो from the ground normal reaction है, but from the other body जिसके साथ है कांटेक्ट में। तो अगर mg ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पर है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज n ऑफर्ड बाय द अर्थ। तो इस सूरत में नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता है। लेकिन हमेशा ऐसा मत सोचो कि नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता है। In different cases, normal reaction is different. But when the body is on the ground, तब जाकर normal reaction mg के बराबर होता है। लेकिन ऐसा मत सोचो कि हर जगह पर normal reaction mg के बराबर होता है। ठीक? ओके। Now, अब ये जो फ्रिक्शन, coefficient of friction, it depends upon the roughness of the two surfaces. दो सरफेस का जो रफनेस है वो कितना, वो अगर ज्यादा है तो म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा हो, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन and also depends upon the roughness of the two surfaces. अगर इन दो सरफेस का रफनेस ज्यादा है तो म्यू एस ज्यादा है। सो इट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज द बॉडी इज स्टिल एट रेस्ट। ओके, अच्छा, तो ये दूसरा कंडीशन हो गया कि जब when the body is about to move, then the frictional force has got the maximum value, and that maximum value is mu s n. Mu s is the coefficient of static friction between the two surfaces, and n is a normal reaction. तो दो चीजें तो हो गई, जहां तक बॉडी रेस्ट में है तो यू नो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाई फोर्स करोगे, जितना भी अप्लाई फोर्स करेंगे उन अप्लाइड, यहां तो मैंने एक ही फोर्स अप्लाई किया, 4-5 भी करोगे उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट निकाला, वो जितना भी रिजल्टेंट होगा, बॉडी भी उस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से बॉडी मूव नहीं कर रही है, समझो फ्रिक्शनल फोर्स उस रिजल्टेंट फोर्स के बराबर है। अगर आपने एक ही फोर्स अप्लाई किया तो उतना ही फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होगा। लेकिन अगर आप 2-4 फोर्स लगाएंगे, उनका रिजल्टेंट आप निकालोगे, उस रिजल्टेंट के बराबर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आता है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? जो आपने अप्लाई, जो नेट अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट में आता है। मैग्नीट्यूड उतना है जितना आपने अप्लाई फोर्स किया, और डायरेक्शन उसके अपोजिट में। तो अब क्या रहा बाकी? अब तो कुछ बाकी रहा ही नहीं। अब तो एक ही कंडीशन है, when the body is in motion, when the body is in motion, एक ही चीज है अब, when the body is in motion, when the body is in motion, तब जाकर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? तो तब फ्रिक्शनल फोर्स है F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर? एक ही इक्वेशन है, म्यू के एन, while mu k is kinetic coefficient of kinetic friction, mu k is coefficient of kinetic friction, and n is normal reaction. n is normal reaction. लेकिन ये जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस। मतलब जब बॉडी मोशन में है तब जाकर काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा कम होता है। या मतलब व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, अंडुलेशंस जो यहां होते हैं, हाँ, मतलब जो यहां पर रफनेस होती है वो क्रैश डाउन हो जाती है, बिकॉज बॉडी, वो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक, बस ये खत्म हो गया। अगर मैग्नीट्यूड की बात आ जाए तो खत्म हो गया। देखिए, बॉडी एट रेस्ट, फ्रिक्शन फोर्स कितना है? इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया,
A time comes when body is about to move. तो उस वक्त बॉडी पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है दैट इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। तो स्टैटिक ही, बॉडी तो अभी रेस्ट में ही, अबाउट टू मूव है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम वैल्यू, इट्स म्यू एन, नहीं म्यू एस एन. Mu s is coefficient of static friction into normal reaction. Normal reaction is not always mg. When the body is on the ground, then it's the mg. But in different cases, scenarios, situations, normal reaction is different. अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां ऐसे करूंगा, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखूंगा, ये ऐसे, इसको मैं प्रेस करूंगा onto the board. Normal reaction is the force with which I push the notebook inside. नॉर्मल रिएक्शन, इसका नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं है, इसका नॉर्मल जो ये फोर्स देता है, बोर्ड देता है फोर्स इस ओर, वो मेरे फोर्स के बराबर है जो मैं इस ओर देता हूं. सो नॉर्मल रिएक्शन इज माय फोर्स इनवर्ड्स. तो ये सोचना है कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू mg, गलत चीज है. ओके, व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू मूव द फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम एंड इट्स म्यू एस एन. व्हेन द बॉडी इज इन मोशन देन फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू के एन. Mu k is slightly less than mu. दिया होगा तो you can find it out. Okay. Now, मोशन में तो जितना भी फोर्स आप अप्लाई करोगे, अब once the body is in motion, तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपके अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा. उसका यही फॉर्मूला म्यू के है, वो वक्त आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड नहीं है. अच्छा, चलो आई विल प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स एंड आई विल सी हाउ इट वर्क्स आउट टू बी. देखता हूं मैं क्या इसका होगा. अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, फिफ्थ पॉइंट देखिए, ये देखिए ग्राफ प्लॉट करता हूं थोड़ा सा. इट इज अप्लाइड फोर्स, इट इज फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज ओरिजिन. तो बताइए व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज जीरो, ये फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? जीरो, बिकॉज बॉडी विल बी एट रेस्ट. फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स इज 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन होगा बिकॉज बॉडी विल बी स्टिल एट रेस्ट. तो यहां तक तो ग्राफ आएगा 45 डिग्रीज के हिसाब से, 45 डिग्रीज, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. तो यहां अप्लाइड फोर्स ये है, समझो कुछ भी जो भी होगा अप्लाइड फोर्स, लेकिन यहां फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम, एफ मैक्स, दैट इज म्यू एस एन. और अब इस अप्लाइड फोर्स, जब आपने इतना अप्लाइड फोर्स किया, द बॉडी इज अबाउट टू मूव, द मोमेंट बॉडी इज अबाउट टू मूव, फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइटली डिक्रीजेस एंड देन इट बिकम्स रिमेन्स कांस्टेंट. तो इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. यहां जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, कितना ये? एफ काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू के एन. तो अब जितना भी अप्लाइड फोर्स होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है. यहां देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, और आगे जाकर जितना भी फोर्स आप अप्लाई करोगे, बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन, द फ्रिक्शनल फोर्स इज दिस. So when the body is in motion, you have the formula. When the body is about to move, you have the formula. When body is at rest, you have the formula. You don't have any magic formula for frictional force unless you see what the body is doing. Body at rest, you must know the answer. Body is about to move, you must know the answer. And body is in motion, you know the answer. तो आपको पहले बॉडी का स्टेट देखना पड़ेगा, what the body is doing with respect to another body on which it lies. बॉडी मूव कर रही है, लेकिन उसके नीचे जो बॉडी है वो भी मूव कर रही है विद द सेम वेलोसिटी, दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. तो आपको रिलेटिव मोशन देखना होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट मी फ्रेम ए प्रॉब्लम. हो सकता है इस प्रॉब्लम से थोड़ा कुछ क्लियर हो जाए. लेट मी सी, मैं एक प्रॉब्लम फ्रेम करता हूं, उससे शायद क्लियर हो जाए. 6th, चलो ये एक बॉडी है, यहां पर इस बॉडी का मास समझो 2 kg है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझो g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और व्हाट इज द वेट डाउनवर्ड फोर्स mg. नॉर्मल रिएक्शन इसका क्या होगा? सरफेस क्या देगा नॉर्मल रिएक्शन? ये n. तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg के बराबर, बिकॉज द मोशन इज नॉट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इसलिए n इज इक्वल टू mg.
अच्छा, let me suppose coefficient of static friction is 0.5. Let me suppose coefficient of kinetic friction is 0.4 because coefficient of kinetic friction is slightly less than coefficient of static friction. तो मुझे बताइए, क्वेश्चन अभी बनाया मैंने नहीं, बनाया ही नहीं मैंने. क्वेश्चन अप्लाइड फोर्स, ये वाला अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 7 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 20 न्यूटन. बताइए जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूं 1 न्यूटन तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जब 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगा तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जब 3 न्यूटन का करूंगा तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स, 7 का करूंगा तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स, 10 का करूंगा तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स, 12 और 20 का क्या कैसे करूंगा. देखो जब मैंने 1 न्यूटन का फोर्स दिया इस बॉडी पर, ठीक, तो पहले तो मुझे यही पता नहीं है कि जब मैं 1 न्यूटन का फोर्स दूं बॉडी मूव करेगी कि एक ही जगह रहेगी, या बॉडी अबाउट टू मूव होगा, या बॉडी रेस्ट में होगा, या बॉडी मोशन में आएगा 1 न्यूटन अप्लाई करने से. दैट आई डोंट नो. सो हाउ कैन आई फाइंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन आई अप्लाई 1 न्यूटन टू दिस ब्लॉक. इसलिए मुझे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा. वो आंसर तो होगा नहीं, लेकिन वो निकालना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले 1 न्यूटन से इस बॉडी का क्या होगा. द मोमेंट आई नो व्हाट इज द स्टेट ऑफ द बॉडी when I apply 1 Newton, I can find the frictional force. तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, what is the maximum frictional force, वो निकालना पड़ेगा. भले वो फिलहाल वो आंसर नहीं है इस सिचुएशन का, 1 न्यूटन का वो आंसर नहीं है, लेकिन निकालना पड़ेगा पहले. तो मैक्सिमम दैट इज म्यू एस एन. सो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, म्यू एस इज 0.5, नॉर्मल रिएक्शन इज mg. सो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर लिखूं मैं, 0.5 को मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 2 into 10. तो व्हाट इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज 10 न्यूटन. इसका मल्टीप्लाई करने से 10 न्यूटन होगा. तो ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा वो 10 न्यूटन का है. अब आप मुझे बताइए जब आपने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया क्या बॉडी मूव करेगी. 10 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तक तो एडजस्टिंग फोर्स है, ये तो सेल्फ एडजस्टिंग है. 1 न्यूटन पर बैकवर्ड फोर्स आएगा 1 न्यूटन. वो जब अप्लाई इस पर आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, 1 न्यूटन पर आएगा फ्रिक्शनल फोर्स कितना कितना आएगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तो निकला. तो जब आपने 1 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शनल फोर्स इज 1 न्यूटन. जब आपने 2 न्यूटन किया तो फ्रिक्शनल फोर्स इज 2 न्यूटन. जब आपने 3 न्यूटन का किया तो फ्रिक्शनल फोर्स इज 3 न्यूटन, बिकॉज बॉडी विल नॉट मूव, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो वहां से आने वाला है वो 10 न्यूटन का है. तब तक फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्ट करता रहेगा, सेल्फ एडजस्ट. 7 न्यूटन पर आएगा 7 न्यूटन. 10 न्यूटन पर जब आपने अप्लाई किया तो वहां से भी 10 न्यूटन आएगा, लेकिन जब 12 न्यूटन आपने अप्लाई किया तो वहां से 10 न्यूटन मैक्सिमम है. अब 12 न्यूटन पर बॉडी क्या करेगी, इट विल मूव, इट विल मूव. 10 न्यूटन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन. अब आपने 12 न्यूटन का फोर्स दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स ने सरेंडर किया, उसने कहा कि 12 से मैं आगे नहीं जा सकता हूं, मेरा तो 12 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स में दे सकता हूं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और म्यू एस तो वही कहता है. तो उसका मतलब यह है कि 12 न्यूटन पर बॉडी मोशन में है, तो मोशन के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, म्यू के एन, दैट इज 0.4 इंटू एम इंटू जी, दैट इज एम इज ओके 0.4 इंटू 2 इंटू 10, दैट इज 8 न्यूटन. 12 न्यूटन जब आपने अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स वहां से जो अपोज आएगा 8 न्यूटन आएगा, लेकिन बॉडी मोशन में होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि यहां से 12 न्यूटन वहां से 8 न्यूटन, और बॉडी विल एक्सेलरेट अकॉर्डिंग टू 4 न्यूटन. अच्छा, जब आपने 20 न्यूटन का फोर्स दिया, अभी कोई चेंज होगा क्या, बॉडी तो मोशन में है ही, तो अगेन इट इज 8 न्यूटन, क्योंकि हमने कहा व्हेन द बॉडी इज इन मोशन तब जाकर अप्लाइड फोर्स कितना क्यों हो, फ्रिक्शन फोर्स वही है म्यू के एन. I think this problem should solve this, should clear the concept. 7th point. अब जाकर के
हमारा यह है कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी कॉन्सेप्ट है, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका दो तरीके हैं डायरेक्शन निकालने के लिए। अगर आप चाहो तो मैं दोनों तरीकों से आपको डायरेक्शन निकाल कर देता हूं, लेकिन इजीएस्ट तरीका क्या है, जैसे देखते आपको डायरेक्शन का पता चले ना। वी विल डिस्कस बोथ द थिंग्स। कभी एक जो कॉन्सेप्ट है एक तरीके से जल्दी निकलता है एक सिचुएशन में, लेकिन दूसरे सिचुएशन में दूसरा कॉन्सेप्ट लगा के वो जल्दी फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन निकल जाता है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी ट्रिकी। जैसे मिसकंसेप्शन ये है कि इफ यू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स इज बैकवर्ड, ये मिसकंसेप्शन है। जब मैं चलता हूं तो मुझे फ्रिक्शनल फोर्स ही फॉरवर्ड लेता है, इज द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच टेक्स मी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसा समझना कि नहीं मैं आगे जा रहा हूं और फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड है। अरे फिर कौन सा फोर्स मुझे आगे एक्सेलरेट कर रहा है अगर फ्रिक्शनल फोर्स ही बैकवर्ड है? तो एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स मेक्स मी टू मूव फॉरवर्ड। मैं फ्रिक्शन की वजह से ही आगे जाता हूं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आई विल स्लिप, आई कांट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन निकालना भी एक ट्रिकी चीज है, वो मैं आपको बताता हूं। पहले एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं, हैव अ लुक। अगर ये बॉडी है, ये आपने फोर्स दिया, ये अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शन नहीं है, तो मुझे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। टेक्निक ये है कि समझो फ्रिक्शन है नहीं, फॉर द टाइम बीइंग, या जस्ट इग्नोर द फ्रिक्शन, जस्ट फील दैट देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉडी का एक्सेलरेशन किस ओर होता? आगे की ओर। इस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट हो जाता आगे की ओर, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज बैकवर्ड। मतलब यह है कि फ्रिक्शन के एब्सेंस में जहां बॉडी को जाना है, फ्रिक्शन की एब्सेंस में, फ्रिक्शन को इग्नोर करके देखना है बॉडी कहां से जाने वाली है, फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट होगा। दैट इज ऑल। फ्रिक्शन को इग्नोर करो, कहो कि फ्रिक्शन है नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट फ्रिक्शन है नहीं, और देखो जो आपने फोर्स अप्लाई किया उस वजह से बॉडी को कहां जाने का इरादा था, तो फ्रिक्शनल फोर्स उस डायरेक्शन का अपोज करेगा जहां से बॉडी जाना चाहती। ये देखिए। अच्छा, इनक्लाइन प्लेन मैं लेता हूं, ये इनक्लाइन प्लेन लेता हूं। फ्रिक्शन की वजह से ये अपनी जगह है, फ्रिक्शन इसको रोके हुआ है अपनी जगह। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या करता है ये? इट विल स्लाइड डाउन। फ्रिक्शन नहीं होता तो ये इट विल स्लिप डाउन, इट विल स्लाइड डाउन, तो फ्रिक्शन फोर्स इज बैकवर्ड। तो आप इमेजिन करो कि फ्रिक्शन नहीं है और देखो बॉडी को जाने का कहां इरादा है, जहां जाने का इसको इरादा है फ्रिक्शन फोर्स उसके उल्टा होगा। दैट इज ऑल। ये तो एक कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने का। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, एट्थ पॉइंट वो ये है कि देखिए, हम कहते हैं कि फ्रिक्शन अपोजिट मोशन। कभी कभी मतलब इन आवर ओन वे वी से फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट मोशन। नो, फ्रिक्शन जो फोर्स है इट अपोजिट रिलेटिव मोशन। ये चाहते कि बॉडी आपस में जो है रब न करें, ये आपस में रब न करे, फ्रिक्शन फोर्स उसके खिलाफ है। फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ रिलेटिव मोशन के अपोजिट है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इस पर भी निकाला जा सकता है कि इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो मैं लिखूंगा द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज सच, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल force is such as to oppose the relative motion. ये इसको लेकर के हम निकाल सकते हैं कि जैसे मैं ऐसे देखो, ये बॉडी है, आपने यहां फोर्स दिया ऐसे, तो इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा, आगे की ओर
वेलोसिटी क्रिएट। ये एक बॉडी है, इसका वेलोसिटी समझो इस फोर्स की वजह से v है। ग्राउंड का वेलोसिटी क्या है? 0। ग्राउंड का वेलोसिटी 0 है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस रिलेटिव वेलोसिटी को खत्म करने की कोशिश करेगा। ये कहेगा इट वांट्स रिलेटिव वेलोसिटी टू रिड्यूस टू 0। अगर रिलेटिव वेलोसिटी होगा दो बॉडीज में, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स कोशिश करेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए। तो इसका वेलोसिटी इस फोर्स की वजह से सपोज v बनाया कुछ होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस वेलोसिटी को 0 बनाएगा या इस 0 को v बनाएगा। तो मुझे बताइए, अगर यहां रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस 0 दैट इज v बिटवीन दीज टू बॉडीज, इस रिलेटिव वेलोसिटी को 0 बनाने के लिए इस बॉडी को किस ओर फोर्स होना चाहिए ताकि ये वेलोसिटी कम होकर के 0 बने, या इस बॉडी पर किस ओर, या ग्राउंड ही सही या कोई ब्लॉक ही सही, इस बॉडी पर किस ओर फोर्स होना चाहिए ताकि इसका वेलोसिटी v के बराबर होगा ताकि रिलेटिव वेलोसिटी 0। क्योंकि अगर दोनों बॉडीज का वेलोसिटी फॉरवर्ड v है तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया 0। v एंड v, इसका भी v इसका भी v, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा कुछ होना चाहिए वो 0 को v बनाए और v को 0 बनाने की कोशिश करे। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इस पर यूं होगा टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी, या इस पर ये होगा। लेकिन दो में से एक पर ही निकालना है, दूसरे पर तो वो रिएक्शन फोर्स होगा, मतलब अपोजिट होगा न्यूटन लॉ की, थर्ड लॉ की वजह से। आपको एक ही पर, इसका मतलब अगर यहां 0 वेलोसिटी 0 है तो इसका वेलोसिटी कम होकर के 0 बनना चाहिए ताकि रिलेटिव वेलोसिटी 0, या इसी का वेलोसिटी इसके बराबर हो जाए v ताकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। तो इस पर फोर्स f फॉरवर्ड होना चाहिए ताकि इट्स वेलोसिटी इंक्रीज टू v, इस पर फोर्स बैक होना चाहिए ताकि इट्स वेलोसिटी रिड्यूसेस टू 0, so that frictional force opposes the relative motion to make the relative velocity between the two bodies as 0। तो ये भी एक तरीका है। अच्छा, इसका मैं और एक एग्जांपल देता हूं ताकि कुछ आप इसको और अंडरस्टैंड करो। चलो ये बॉडी है, तो अब मैं ये ब्लॉक लेता हूं, ये ब्लॉक लेता हूं और ये ब्लॉक लेता हूं। चलो दो ब्लॉक, इसका वेलोसिटी 10 है, इसका वेलोसिटी 15 है। बताइए व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस एंड दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स की कोशिश ये होगा कि इस 10 का वेलोसिटी 15 बने ताकि रिलेटिव वेलोसिटी बिकम 0, या फ्रिक्शनल फोर्स इस पर कुछ ऐसे होगा ताकि इस 15 का वेलोसिटी क्या बने 10, खत्म बात। तो अगर इस 10 को 15 बनाना है तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज करना है, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड, तो इस पर बैकवर्ड है ही रिएक्शन के हिसाब से, एक्शन रिएक्शन के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो 15 को यहां से फोर्स होना चाहिए ताकि 15 का 10 हो जाए ताकि रिलेटिव वेलोसिटी 0, 10 माइनस 10, इसका भी, या इसका 15 हो जाए इस फोर्स के हिसाब से, या इसका 10 हो जाए इस फोर्स की वजह से ताकि रिलेटिव वेलोसिटी दोनों में कुछ ना हो। So that is what we mean by the frictional force opposes the relative velocity। यह relative velocity को खत्म करना चाहता है। जो इस बॉडी का वेलोसिटी है, फ्रिक्शनल फोर्स कोशिश करता है कि इस बॉडी का भी वही वेलोसिटी हो जो इस बॉडी का है। तो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, इस पर फॉरवर्ड, इस पर बैकवर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। सम concepts I try to clear to you, but in the next lecture there'll be more examples, more applications, and it will be fun doing a few lectures with frictional forces. And finally, you can download the literature from the my app, that is Tantrasar Physics Class. Thank you.